Okay, students. So today I will discuss about the important questions of the computer networks. Here I have described the long questions and short question in the category wise, and also described the questions unit by unit. It means here you will see that key all the questions. It means first unit. यदि फर्स्ट यूनिट में 5 क्वेश्चंस हैं, 10 क्वेश्चंस हैं, जितने भी हैं मैं भी आपको दिखाऊंगा. आपको सारी चीजें एकदम सीक्वेंस वाइज मिलेंगी, हर चीज इसमें. तो देखिए, जैसे सबसे पहले हमारा क्या है, यूनिट फर्स्ट हमारी जो है कम्युनिकेशन की यूनिट है. ठीक है, सबसे पहले जो है वही सिंपल क्वेश्चन जो हर जगह आता है. सबसे पहला क्वेश्चन 101% आना ही आना है. शॉर्ट क्वेश्चन में व्हाट इज द कम्युनिकेशन इन द 2 मार्क्स. गाइडेड मीडिया, अनगाइडेड मीडिया आना ही आना है. ठीक है, उसके बाद क्या है, डिस्क्राइब द कंपोनेंट एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द डेटा कम्युनिकेशन. Fourth one is what is the protocol, describe with its types. Important question. What is the topologies? It is also very important questions. And what are the line coding? And फर्स्ट यूनिट में क्या है, हमारे पास सिर्फ 2 ही सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस में. नंबर 1 इज what is the ISO या OSI in data communication. 100%. This is the most important question. I have told you this is most important. This one is most important question. Please learn this one. This is most important. Okay. And so first question is TCP/IP model, and second one is ISO and OSI data communication. Okay, this is our unit first. Now we will come on the unit second. Okay, now see, this is unit second. Unit second, how many questions? There are 3 questions in a short question. It means number 1 is humming code and CRC. Very important, this one, humming code and CRC. And also sometimes question is also coming on this phase. So if you will learn, then solve one question also. This is very important to all of you. उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है हमारा क्या, अलोहा slotted. Aloha is also very important because these are the all the questions are so important. इसमें सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं जो कि इंपॉर्टेंट कम हो. लेकिन जैसे देखिए अलोहा, इसमें हम पढ़ेंगे क्या, स्लॉटेड अलोहा एंड प्योर अलोहा. ठीक है, उसके बाद हमारा थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज द ARQ. ठीक है, कि ये रिक्वेस्ट कौन कौन सी होती है. सपोज दैट मैंने एक एग्जांपल दिया, सपोज दैट स्टॉप एंड वेट ARQ एंड सो मेनी ARQ is available. When you will study, then you will find out without any hesitation. Okay, now long question, what is noisy and noiseless channel. What is noiseless channel and what is noisy channel. Sometimes there is a one difference between the noisy and noiseless channels, so learn it. So third one is what is the selective repeat ARQ and go back end. Mostly this will ask the examinations. What is the selective repeat and go back end ARQ, because both are the different ARQ. Okay, and what is the concept of the IEEE standard. कि IEEE क्या होता है, कहाँ यूज होता है, कि वाईफाई के लिए जैसे 802 हमारा यूज होता है, कौन सा, वो सारी चीजें आप इसमें पढ़ेंगे. ठीक है, नाउ हम देखेंगे यूनिट 3. यूनिट 3 हमारी कौन सी आती है, नेटवर्क लेयर रहती है. हाँ, तो सबसे पहले क्या है हमारी नेटवर्क लेयर क्या है एंड उसकी सपोर्ट. ये देखिए, व्हाट इज द नेटवर्क सपोर्ट लेयर एंड यूजर सपोर्ट लेयर, क्या क्या होती है हम जानते हैं. ठीक है, अब ये देखिए, ये लिखा LLC और मैक. जैसे हमने डेटा, जब आप देखेंगे डेटा लिंक लेयर 2 पार्ट में डिवाइड होता है. किस किस में, एक LLC, एक मैक, लॉजिकल लिंक कंट्रोल एंड मिक्स मीडिया एक्सेस कंट्रोल. 2 चीजों में ये जो है डिवाइड होता है. ठीक है, इसको भी आप पढ़ेंगे, ये शॉर्ट क्वेश्चंस में आता है. व्हाट इज द रिस्पांसिबिलिटीज ऑफ द नेटवर्क लेयर. नेटवर्क लेयर की क्या क्या रिस्पांसिबिलिटीज है. ठीक है, और देखिए ये एक छोटा क्वेश्चन, ये अक्सर पूछा जाता है कि व्हाट इज द राउटर, स्विच, हब एंड ये. तो आप जब पढ़ेंगे तो सिंपल आपको पता चलेगा कि व्हाट इज द राउटर. ये route define, what is the router, it will define the routes of the any network. It means where it will be go. Okay, and I have write one thing wrong here. See, not, this is not router, this is router. I have written router, but by mistake I have written router, because router is here, this is router. What is the router, what is the switch and hub. Like switch, mostly there is asked what is the difference between switch and hub. So switch is an intelligent device and hub is the same thing is of the switch and hub. ठीक है, और हम देखेंगे लॉन्ग क्वेश्चंस में हमारे कौन कौन से हैं. व्हाट इज यूनिकास्ट प्रोटोकॉल. नंबर सेकंड, लॉजिकल एड्रेसिंग हमने पढ़ेंगे इसमें. डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग एल्गोरिथम, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. दिस वन, दिस इज
distance vector, and link state routing, path vector routing, and BGP. 101%. With 4, you will get 1. 101%. सो यहाँ मैंने जितने भी डिस्क्राइब किए हैं, तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल, यदि आप इतना पढ़ के जाइए, आप 80% मार्क्स कहीं नहीं गए आपके। आप पास होने की सोच रहे हैं, आप 80% मार्क्स ले आएंगे यदि आप इतना ही पढ़ के चले गए, क्योंकि इसमें मैंने बड़ी मेहनत से सारी चीजें कवर करी हैं। ठीक है, अब आप देखिए यूनिट 4 में हमारा क्या है, ट्रांसपोर्ट लेयर है यूनिट 4। तो इसमें क्या है, सबसे पहले जब ट्रांसपोर्ट लेयर है तो वही सिंपल कि व्हाट इज ट्रांसपोर्ट लेयर, इट मींस फंक्शनैलिटी ऑफ द ट्रांसपोर्ट लेयर। नंबर सेकंड, ड्यूटीज ऑफ द ट्रांसपोर्ट लेयर, मींस सेगमेंट क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ द मल्टीप्लेक्सिंग। यहाँ पे हमारे 3 जो है सबसे बड़े बड़े क्वेश्चन है, जिसमें सबसे एक ये, इसको 100% पढ़ लेना, ये आना ही आना है एग्जाम में कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द यूडीपी एंड टीसीपी। मतलब ये डेटाग्राम पैकेट आप जो है इसको आपको पढ़ना ही पढ़ना है 100%। डेटाग्राम प्रोटोकॉल ये आपको पढ़ना ही पढ़ना है, 100% आना ही आना है। ठीक है, तो आप ये क्वेश्चन इसमें 100% तैयार करेंगे। कौन सा, ये डेटाग्राम प्रोटोकॉल, यानी ये वाला यूडीपी, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, और टीसीपी। ठीक है, ये 100% आना ही आना है। नंबर आइए जो है इसमें देखिए 2 क्वेश्चन है। व्हाट इज द कंजेशन कंट्रोल, यस दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। व्हाट इज कंजेशन कंट्रोल, कंजेशन कंट्रोल, एंड डिस्कस द स्ट्रेटजीज यूजेस टू द अवॉइड ऑफ द कंजेशन। कंजेशन में कौन कौन सी हमारी स्ट्रेटजी यूज होती है। अब आएंगे हम यूनिट 5। यूनिट 5 में क्या है हमारा, सबसे पहले क्या है, डोमेन नेम सिस्टम क्या होता है। फिर उसके बाद जो है डिस्कस द टीसीपी कनेक्शन नीडेड इन द एफटीपी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल में क्या यूज होता है। एसएमटीपी सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल क्या क्या होता है। उसके बाद माइम हमारा यूज कैसे करता है। ओके, हाउ इज अ सीक्रेट की डिफरेंट फ्रॉम द पब्लिक की। बिल्कुल एक डिफरेंट इसमें लिखने के लिए बड़ा ही छोटा सा लिखेंगे आप। व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ द सीक्रेट इनक्रिप्शन क्या होता है। ठीक है, अब इसमें लॉन्ग क्वेश्चंस हमारे कौन कौन से देखिए। सबसे इसमें मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता देता हूँ, दिस वन RSA एल्गोरिथम। RSA एल्गोरिथम क्या है, हमारी इनक्रिप्शन की एल्गोरिथम है। RSA एल्गोरिथम इज नथिंग बट अ एल्गोरिथम ऑफ द इनक्रिप्शन। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन, इसमें हम HTTP प्रोटोकॉल यूज्ड फॉर see here there is one mistake I have done. What number 1 question, what is the HTTP protocol used for, किसके लिए यूज होता है। नंबर 2 क्वेश्चन क्या है, what is the difficult, what is the default port number of the HTTP protocol। yes, this is the I think 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ये मैंने अभी लिखा था, ये वाला क्वेश्चन नया क्वेश्चन था कि आखिर कहाँ सा पोर्ट नंबर HTTP प्रोटोकॉल यूज होता है। ठीक है, ये आपका अभी नया क्वेश्चन था। फिर उसके बाद एक्सप्लेन द टाइप ऑफ द इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन मेथड्स, कौन कौन से होते हैं इसमें। आप एल्गोरिथम, सबसे मेन एल्गोरिथम आपकी ये वाली है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या, लिस्ट द डिस्कस टाइप ऑफ द DNS रिकॉर्ड, मतलब DNS के बारे में आपको इसमें पढ़ना है। ठीक है, तो इसमें बेसिकली आप क्या पढ़ लेंगे, FTP क्या है, SMTP क्या है, TCP क्या है, माइम क्या है, ये सारे प्रोटोकॉल, और ये इंक्रिप्शन वाला पढ़ लेंगे। तो इसमें इस तरह हम 5 की 5 यूनिट हम कवर कर लेंगे। ठीक है, तो यदि आपके लिए बेनिफिशियल हो तो आप बिल्कुल मेरा चैनल लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। और नेक्स्ट अब मैं आपको बताऊंगा जो है कंपाइलर डिजाइन के कितने जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिकॉज कि मैं इस समय ये जो मेरी सीरीज चल रही है, ये सीरीज है हमारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। तो मैं यहाँ पे इवन सेमेस्टर में जितने भी आपके सब्जेक्ट्स हैं, जितने भी बीटेक में हैं, जितने भी सारे सब्जेक्ट्स हैं, मैं डिप्लोमा BC में कवर कर रहा हूँ, और ऑल्सो कवरिंग द BC ऑल्सो। सो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम में आ रहे हैं, मैं सब कुछ पूरा 10 साल का आप लोगों को पूरा का पूरा जो है वो पता करके आपको बता रहा हूँ। ठीक है, थैंक यू।